back to the Chemistry Simplified classes. Today we are going to learn about the classification of crystalline solids. We will be discussing the unit cell, the Bravais lattice, and also we will do the coordination number, the contribution, the close packing. So all these we will try to understand one by one. So let's just get started. Alright. So first we are going to discuss the classification of crystalline solid. Classification of crystalline solid. Now we have studied in the previous class about the two types of solids, basically the crystalline solid and the amorphous solid. Now we have seen different types of the solids which are crystalline in nature, for example copper, silver, gold, and also some non-metallic elements thus forming crystals like sulfur, diamond, etc. Okay, so depending upon that we can classify the crystalline solids into another four types. Basically we will be discussing the ionic solids, then we have covalent or network solid, then we'll discuss the molecular solids, and the one that is metallic solid. तो एक एक करके हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं कि आयनिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंड मेटालिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है. First of all, let us discuss ionic solid. What is ionic solid? Now, the ionic solids are made up of oppositively charged ions, cation and anion. अगर हम एक आयनिक सॉलिड की बात करें तो आयनिक सॉलिड के अंदर जो क्रिस्टल सिस्टम जो होता है आयनिक सॉलिड का, उसमें जो एटम्स होते हैं जैसे कैटायंस एंड एनायंस, दे आर ऑल्टरनेटिवली प्लेस्ड like Na plus Cl minus, Na plus Cl minus, Cl minus Na plus Cl minus, Na plus, then again Na plus Cl minus, Na plus Cl minus. जैसा कि हम जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रेगुलर पैटर्न फॉलो की जाती है. तो अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो आयनिक सॉलिड के अंदर जो आयंस होते हैं दे आर अपोजिट आयंस विच आर बॉन्डेड विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, जिसके कारण आयनिक सॉलिड्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट because they have a strong force of attraction. अब हमको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F is directly proportional to Q1 Q2 by R square. इसका मतलब क्या है? What do you understand by this? Now अगर हम इस यहाँ पे देखें, so what will be the force? If the distance is increased, the force will be stronger, right? So here we can see there's an inverse relationship between the ionic strength. So the strength of the ionic bond is inversely proportional to the size of the cation and the anion. ठीक है? So जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना weak bond होगा. ठीक है? So because they have strong force of attraction, इनके बीच में strong force of attraction होता है, that is why the ionic solids they have high melting and boiling point. These are soluble in polar solvents, then they are non-conducting. Remember ये non-conducting होते हैं solid state में, non-conducting in solid form, in solid state, but in aqueous medium, in aqueous solution या फिर in molten phase state, in aqueous solution they are conducting. Aqueous solution में ये क्या करता है? These are conducting in nature. That means they are good conductors. Okay, so they have what are the characteristics of ionic solids? Ionic solids जो होते हैं the constituent particles in ionic solids, इसके जो constituent particles होते हैं वो होते हैं ions, and due to the strong force of attraction the melting and boiling point is generally higher. They are soluble in polar solvents. They are non-conducting in solid state, but they are conducting in the molten or in the aqueous form. Then they
they are good conductors of electricity. Okay, for example, some example of these are NaCl, then CS, Cl. So all these CaCl or CaF2, all these are examples of ionic solids. Alright, so this is the characteristic of a ionic solid. Next we have covalent solid. What are the characteristics of a covalent solid? First of all, in the covalent solid, the constituent particles are atoms which generally non-metals. Atoms which belong to the non-metals. For example, graphite or diamond. Diamond is a good example. Okay, so in the case of covalent or network solid, we have the constant particles belong to the non-metals basically, and they follow the same pattern throughout the crystal, and that is why they are also called as network solid. Network solid. Now, if we compare diamond and graphite, which are both the allotropes of carbon, we know that carbon is sp3 hybridized where graphite is sp2 hybridized, meaning कि डायमंड में जो एक कार्बन होता है वो और 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, thus having a tetrahedral structure. Thus it is having a tetrahedral structure with, and because इसमें because in diamond जो होते हैं कार्बन, all carbon atoms are occupied, there is no free electron, that is why diamond is a bad conductor of electricity. Whereas in graphite के अंदर एक कार्बन और 3 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, which makes there is one carbon which is free. So there is a free, because of the presence of a free electron, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसीलिए कार्बन क्या होता है, कार्बन is conducting in nature and it is considered to be a good conductor. Okay, so this is the difference between a diamond and a graphite, which both have a network solid. और अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, so again these are hard as well as brittle, because ये क्या होते हैं, these solids, these are hard as well as they are brittle. Brittle क्यों? क्योंकि थोड़े से pressure लगने पे they break. Okay, then again they have high melting and boiling point. Then basically they are they are good conductors, for example graphite, and others are not good conductors like diamond. Okay, so ये थे characteristic हमारे कोवैलेंट सॉलिड्स के. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड. ये तो हो गया हमारा आयनिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड. नेक्स्ट वी हैव इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं 3 तरीके से. पहला हो गया पोलर कोवैलेंट सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एंड देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एंड ऑल्सो वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डेड. ओके, सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स 3 तरीके के हो गए हमारे. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर, पहले हम नॉन पोलर डिस्कस करेंगे. देन वी हैव पोलर एंड ऑल्सो वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डेड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, सो इन द फर्स्ट केस नॉन पोलर, नॉन पोलर में कांस्टेंट एटम्स कौन से होंगे, वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल्स इन दिस द कांस्टेंट एटम, द कांस्टेंट पार्टिकल्स इन दिस सॉलिड इज आर द इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स. बेसिकली किसके होते हैं, N2K, O2K, H2K. Okay, and they are bonded with weak force of attraction, जिसको हम वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं या फिर लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो होता है बॉन्ड, दैट इज बेसिकली द वीक लंडन फोर्सेस और वैन डर वाल फोर्सेस. बिकॉज ऑफ दैट जो नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये जो होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं. ये जो सॉलिड होते हैं दे आर क्वाइट सॉफ्ट,
एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस, क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं है, दे आर नॉन कंडक्टिंग ऑल्सो। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये क्या है, दीज आर सॉफ्ट सॉलिड्स विच आर नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। ओके, देन कमिंग टू पोलर सॉलिड्स। पोलर सॉलिड्स कौन से हो गए, जहां पे जो नेचर है बॉन्ड का वो कैसा होगा, पोलर। अब पोलैरिटी कहां से आती है, पोलैरिटी कम्स विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। पोलैरिटी जो कहां पे डेवलप होती है, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हाइड्रोजन हमको पता है इसके केस में क्लोरीन जो होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एंड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो व्हाट हैपेंस, क्लोरीन टेक्स अप द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ, thus creating a पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। सो इनके बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है। ठीक है, सो दीज आर सॉफ्ट लाइक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्योंकि इसमें भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो अगेन दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, देन दे हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें सो it is comparatively more than the non-polar solids. ठीक है, तो comparatively है। Then if we talking about the conducting nature, because of this low melting and boiling points, the polar molecular solids again they exist either as the gases or liquids. Can exist as either gases or gases या फिर liquids के जैसे, because they have because the melting and boiling point is low, इसीलिए वो या तो गैसेस या तो लिक्विड्स में एग्जिस्ट करते हैं। एंड अगेन दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते हैं दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, सो इस केस में पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग एटम्स जो हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि OH हो गया, HF हो गया, OH के बीच का बॉन्ड, HF के बीच का बॉन्ड, इसमें क्या है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ड्यू टू क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हमको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो काफी हाई होती है, इज हाई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये काफी these are also non-conductors in nature. These are non-conductors in nature. Okay? तो ये थे सारे कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कितने तरीके के हो गए हमने देखे, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर कहाँ पे होता है, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि N2O2 विच आर बॉन्डेड विद वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देन पोलर कहाँ पे होगा, जहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होती है जिसका नेचर पोलर होता है, जैसे कि HCl। देन all these are non-conductors of electricity. Then last is the metallic solid. अब metallic solid है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, सबसे पहले they are lustrous, they are malleable, they are ductile and they are good conductors of electricity in solid as well as in molten state. Why? Because metallic solids के अंदर क्या होता है, there is the flow of electrons, movement of the electrons, movement of the ions, because due to the movement of ions, these are conducting in solid, they are conducting in solid state, they are conducting in solid state. Okay, तो इसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, metallic atoms, ions, right? So in this again they have high thermal conductivity
and they are good conductors of electricity, they are malleable, they are lustrous, they are ductile. So these are the characteristics of a metallic solid. So we have seen what is the different type of crystalline solids. So first is ionic solid, where the constituent particles are the ions, covalent solid, molecular solid, metallic solid. Okay, ये चार तरीके के crystalline solids हैं. Okay, so that's next we move on to the crystallography. We are going to study the lattice and then the unit cell, which is the main point of this chapter. Okay, so moving on. Now, if you want notes, I can just share my notes with you, okay, through a PDF. So moving on, we'll study the crystallography. Okay, now what is crystallography? अभी तक हम जो पढ़ रहे थे सॉलिड्स कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम बेसिकली जाने वाले हैं क्रिस्टल की तरफ. क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, किस तरीके के क्रिस्टल सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली. सो क्रिस्टलोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of geometry, internal structure and property of the crystal, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके. Okay, सबसे पहले lattice. Now we have seen that these crystalline solids, they have a regular geometry, उनकी एक पैटर्न होती है. ठीक है, so this can be represented in a two-dimensional lattice or a three-dimensional lattice. अब lattice होता क्या है, तो हम किसी तरीके से, for example, if we say अगर मुझे स्क्वायर ज्योमेट्री शो करनी है, ठीक है, तो हम उसको टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे ये पॉइंट्स हो गए. ठीक है, सो अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, the regular arrangement of the constituent particles is known as in 3D is known as a lattice. उसको हम lattice बोलते हैं. और ये जो एक हर एक जो पॉइंट है, क्या हो गया, this is known as the lattice point. इसको हम lattice point बुलाते हैं. ठीक है, इसको हम टू डायमेंशनल वे में डिस्कस कर, अगर दिखाना चाहे, अगर मान लो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक छोटा सा स्क्वायर हो गया, जहां पे ये एंगल क्या है, अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, इसी तरीके से हम स्क्वायर शो कर, रेक्टेंगल शो कर सकते हैं, और रेगुलर हेक्सागन शो कर सकते हैं. तो ये जो पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, उनको हम लैटिस बुलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन अ थ्री डायमेंशनल वे. सो व्हाट इज अ लैटिस? लैटिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ थ्री डायमेंशन और अ टू डायमेंशन space. Next is unit cell. Unit cell क्या है? अब देखो, जैसे कि हम एक घर बनाते हैं, if we have seen you have seen lot of buildings and so many buildings, story buildings, lifts, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी. ठीक है, तो आप देखते हो कि एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग होती है, दूसरे के ऊपर तीसरी होती है, तीसरी के ऊपर चौथी होती है. ठीक है, और एक सोसाइटी में एक बिल्डिंग अगर पूरी खड़ी होती है, तो सारी की सारी बिल्डिंग जो होती है वो एक जैसी होती है, एक पैटर्न की होती है. ठीक है, तो अब क्या होता है, यूनिट सेल की जब अगर हम बात करते हैं, तो यूनिट सेल क्या होता है, जैसे कि हम एक क्रिस्टल सिस्टम में होते हैं. ठीक है, तो एक, जैसे हमने एक घर में एक कमरा ये बनाया. ठीक है, इस कमरे के ऊपर एक एग्जैक्टली वैसा ही कमरा बनाया, उस कमरे के ऊपर एग्जैक्टली वैसा ही कमरा बनाया. तो अगर हमको यूनिट सेल को अगर डिफाइन करना है, तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट बट द कंप्लीट यूनिट इन द स्पेस लैटिस. अगर हम क्रिस्टल को हम स्पेस लैटिस में, अगर 2D में हम डायमेंशन में शो करते हैं, तो यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट but a complete unit in the space lattice, which when repeated over and over, अगर हम उसको बार बार repeat करते हैं, then we get a pattern, a geometry
ओके, डायमेंशन हमको मिलती है जो कि एक क्रिस्टल सिस्टम को जनरेट करती है, ठीक है। सो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट इन द स्पेस लैटिस which when repeated again and again in the three dimension it generates a crystal system, ठीक है। उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। और ये जो यूनिट सेल है, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट इन अ स्पेस लैटिस, स्मॉलेस्ट but complete unit in space lattice, ठीक है। अब ये यूनिट सेल जो है वो दो तरीके का होता है, पहला प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? जहां पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, सो दिस इज ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। एग्जाम्पल, सिंपल क्यूबिक यूनिट, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नॉन प्रिमिटिव की अगर हम बात करें, सो इट अगेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3: face centered, body centered and end centered. Alright, now we are going to discuss one by one the contribution of the atoms which are present in different unit cubic centered cell. Okay, so let us discuss the simple cubic unit cell, face centered, body centered, and then we will discuss the end centered. Okay, so let's just start with the simple cubic unit cell. First is simple cubic unit cell, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक क्रिस्टल ड्रॉ कर दिया, ये है हमारा क्रिस्टल, ठीक है। ऑलराइट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए, वी शुड नो व्हाट इज व्हाट। सो फर्स्ट इज, ये देखो, ये है एक कॉर्नर, ये है दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और 8 कॉर्नर्स। सो इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पे क्या होता है, जितने भी कांस्टेंट एटम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो सारे कॉर्नर से प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द कॉर्नर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? एज हो गया। What is this? This is the center of the edge. तो ये इसको हम कहते हैं एज सेंटर बुलाते हैं। ये there are 6 faces। अगर हम कोई भी क्यूबिक, आप जिस रूम में भी है उसको देख लो, उसके 6 फेस होते हैं, 1 2 3, बैक एंड फ्रंट एंड टॉप एंड बॉटम। तो ये हो गया आपका फेस, ठीक है। दिस इज नोन एज द फेस डायगोनल, ठीक है। अब ये जो हो गया आपका फेस सेंटर हो गया, ऑलराइट, एंड देन दिस इज द बॉडी सेंटर। आप जिस रूम में खड़े उसके बीचों बीच खड़े हो जाइए, वो हो गया आपका बॉडी सेंटर, एंड दिस इज नोन एज द बॉडी डायगोनल। इसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो ये तो बस आपको समझाने के लिए कि कौन सी चीज को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। They are present at 8 corners. Okay. So if we talk about the contribution, अगर हम इसकी contribution की बात करते हैं, then each atom, हर एक एटम, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है,
अगर कोई एटम इस कॉर्नर पे मौजूद है तो ये एक एटम और 8 एटम के साथ शेयरिंग करता है। तो हर एक एटम कितना शेयर कर रहा है 1/8। तो कितने कॉर्नर्स है 8 कॉर्नर्स है और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 1/8। सो दैट इज इक्वल टू 1। सो कंट्रीब्यूशन फॉर SCC इज 1। तो इसके लिए नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा Z की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 1। ओके, सो 1 एटम। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। face centered. Second is face centered. Face centered cubic unit cell. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है एटम्स, द कांस्टेंट एटम्स ये आपने बनाया। ठीक है, वेरी सिंपल टू ड्रॉ। ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे फेस सेंटर्ड के अंदर कितने होते हैं एटम्स जो हैं वो इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो the contribution of 8 atom is 1/8, that is equal to 1, and also the atoms are present at the faces। तो ये एक फेज हो गया, ये दूसरा फेज हुआ, ये तीसरा फेज हुआ, ये चौथा फेज हुआ। ठीक है, 4 हो गए और एक टॉप और एक बॉटम। तो उसको हम यहाँ पे ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, सो दिस आर द 6 फेसेस। अब मान लो कोई भी एटम अगर इसकी दीवार के अगर बीचों बीच हो तो उसके कंट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1 का 2 ही होगा। ठीक है, सो इफ अगर ये इस फेज पे प्रेजेंट है तो ठीक है, ये इसकी शेयरिंग क्या हो जाएगी हाफ होगी, यानी कि 50% शेयरिंग होगी। ठीक है, सो द नंबर ऑफ एटम्स जो फेज पे जो प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। और क्योंकि यहाँ पे 6 फेज है तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 3। तो टोटल क्या हो गया इसके लिए Z की वैल्यू हो गई 3 + 1 दैट इज 4। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है 4। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर के लिए क्या है, तो बॉडी सेंटर के अंदर क्या होता है जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ इसके बॉडी पे प्रेजेंट होता है। तो एक एटम जो है वो सिर्फ बॉडी पे होता है और बाकी सारे जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हमको पता है कि जो एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है 8 × 1/8, एंड बॉडी सेंटर पे है तो बीचों बीच है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा सिर्फ 1। सो टोटल नंबर ऑफ Z इज इक्वल टू 2। तो BCC के लिए नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, वो होंगे 2। नेक्स्ट वी हैव एंड सेंटर। चौथा है एंड सेंटर। एंड सेंटर्ड के लिए क्या होता है जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स एज वेल एज दे आर प्रेजेंट एट दी अपोजिट फेजेस। 2 अपोजिट फेज, तो हम मान लो कि हमने यहाँ पे टॉप और बॉटम अगर मान लिया या फिर हम 2 फेस ही मान लेते हैं तो कहाँ हो जाएगा एक इधर होगा। ठीक है, 2 अपोजिट फेस पे मान लो। ठीक है, हम एक इधर मानते हैं एक इधर मानते हैं तो अपोजिट फेस का कंट्रीब्यूशन अगर फेस पे कंट्रीब्यूशन है तो आधा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कैलकुलेट करें तो जितने कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है 8 × 1/8, और क्योंकि 2 फेज पे प्रेजेंट है तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 2 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए भी Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सो नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूशन इज 2 फॉर FCC। तो हमने क्या क्या देखा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन फॉर सिंपल क्यूबिक सेल Z इज इक्वल टू 1। फॉर FCC Z की वैल्यू क्या है 4। फॉर BCC the value of Z is equal to 2, and for end centered Z is also 2. So this is the contribution of the number of atoms. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, we will be seeing the coordination number
और हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पैकिंग कैसे होती है, एंड द टाइप ऑफ वॉइड्स दैट इज प्रेजेंट. ठीक है, सो यू कैन सिंपली टेक अ स्नैप और स्क्रीनशॉट यू कैन टेक. Next we will just note down the 14 lattice system, crystal system हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल के अकॉर्डिंग यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू द यूनिट पैरामीटर्स, वो हम थोड़ा देख लेते हैं. ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज दी ब्रावियस लैटिस. ठीक है, या फिर 14 क्रिस्टल सिस्टम. Alright, so then next is the cell parameter. Cell parameter ये हो गया हमारा यूनिट सेल. हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं. ठीक है, अब यहां से ये जो है दिस इज द एज लेंथ. ठीक है, ये क्या है, एज लेंथ है. ये सारे क्या है, एज लेंथ. ठीक है, ये हो गया एज लेंथ. अब अगर हम सेल पैरामीटर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये मान लो आपका ए है, ये बी है और ये सी है. इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं. ठीक है, अगर हम इसको ए बी सी मानते हैं तो ए और बी का जो बीच का जो एंगल होगा उसको मान लो अल्फा, बी के अपोजिट मान लिया बीटा और इसको मान लिया गामा. ठीक है, तो ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने वाला गामा. ठीक है, अब यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा है उसको हम बोलते हैं एक्सियल एंगल. ये जो है दिस इज द एक्सियल एंगल. ठीक है, और ए बी एंड सी इज द एक्सियल लेंथ. ए बी सी जो है वो हो गया आपका एक्सियल लेंथ. ठीक है, तो अब इस यूनिट सेल पैरामीटर से हम अगर इसको कंसिडर करते हैं सिमेट्री ऑन द एक्सियल डिस्टेंस जो हो गया ए बी सी एंड द एक्सियल एंगल, इससे हमको क्या मिलेगा, एक क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा. ठीक है, 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स आर फाउंड अकॉर्डिंग टू दिस सेल पैरामीटर. ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं. व्हाट आर द 7? ओके, सो आई विल राइट इन अ शॉर्ट हैंडराइटिंग. 1 2 3 4 5 6 and 7. ठीक है, सबसे पहला क्यूबिक यूनिट सेल. अब हम क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक पे हमको पता है सारे डायमेंशंस बराबर होते हैं. तो ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर, बी होगा सी के बराबर. एंड एट द सेम टाइम ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो क्यूबिक सेल के अंदर हमको क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमको कितने टाइप ऑफ लैटिस मिलते हैं, 3 तरीके के लैटिस हमको मिलते हैं. इसमें कौन 3 मिलता है, सिंपल, फिर बॉडी एंड ऑल्सो फेस सेंटर. ये 3 तरीके के लैटिस यहाँ पे हमको मिल जाते हैं. ठीक है, दूसरा है टेट्रागोनल. सेकेंड इज टेट्रागोनल. टेट्रागोनल के अंदर क्या होता है, ए जो है वो बी के बराबर होता है बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, वेयर alpha is equal to beta, beta is equal to gamma, that is equal to 90 degree. And for tetragonal we get 2 type of lattice. One is simple and body center. ठीक है, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, अल्फा all the 3 lengths is not equal. ठीक है, क्योंकि कभी कभी जरूरी नहीं कि सारे जो पैरामीटर्स है वो सेम हो. ठीक है, so A is not equal to B, B is not equal to C. At the same time, alpha is equal to beta, beta is equal to gamma, that is equal to 90 degree. तो जब ये होता है इसके अंदर हमको 4 लैटिस मिलते हैं, सिंपल, बॉडी, फेस एंड
also end center. ठीक है, 4 lattice मिल रहे हैं. Then we have monoclinic. Monoclinic में क्या है? Again, A is not equal to B, B is not equal to C, and alpha is equal to beta, but beta is not equal to gamma. ठीक है, अल्फा बीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, लेकिन दैट इज नॉट इक्वल टू गामा. एंड इन दिस केस अगेन वी विल गेट 2 टाइप ऑफ लैटिस, सिंपल एंड एंड सेंटर्ड. यहाँ पे भी हमको 2 लैटिस मिल जाएगा. देन वी हैव ट्राइक्लिनिक. फिफ्थ इज ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक में क्या है? अल्फा ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड alpha is not equal to beta, beta is not equal to gamma, and that is also not equal to 90 degree. So here we will only get one type of lattice, that is simple lattice. Then we have hexagonal. Hexagonal के अंदर क्या है? A जो है वो B के बराबर है, but B is not equal to C, where alpha and beta angle is equal to 90 degree and gamma is 120 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक मिक्स पैटर्न ऑफ क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा. ठीक है, देन वी हैव रोम्बोहेड्रल. रोम्बोहेड्रल, यस. रोम्बोहेड्रल में क्या है? A is equal to B, B is equal to C, and alpha is equal to beta, beta is equal to gamma, but it is not equal to 90 degree. And here again we will get one simple lattice. यहाँ पे हमको एक mixed lattice मिलेगा. ठीक है, तो overall it is expected to have 28 lattices. लेकिन कितने ऑब्जर्व होते हैं अरेंजमेंट से? We get 14. You can see 3 plus 2 5, 5 plus 4 9, 10 11 12 13 and 1 14. तो ये इसको हम बोलते हैं 14 क्रिस्टल सिस्टम. 14 क्रिस्टल सिस्टम, या फिर हम इसको ब्रेवियर्स लैटिस के नाम से भी जानते हैं. ब्रेवियर्स लैटिस. ठीक है, तो ये है आपके डिफरेंट 7 क्रिस्टल सिस्टम जिसको हम जानते हैं. ठीक है, सो दिस वाज टिल. हमने क्या क्या देखा अभी? We have seen the types of crystalline solid, then we have seen the contribution unit cell and the contribution of the atoms in SSC, BCC and FCC. Then we have discussed the cell parameters. Okay, so this much for this today. In the next lecture, we will be discussing the coordination number and the shortest neighboring distance. Okay. We'll discuss the relation between R and A, that is radius ratio and the edge length. Okay, I hope you have understood this lecture. If you like my lecture, kindly like and subscribe it, and do share to the needy ones. Thank you. Have a good day.